So what is the content of our life? That pure consciousness. So the whole purpose of yoga is to be in that pure consciousness. Unfortunately, we don't realize what we are. If we have a glimpse of that, then we'll try to be what we are back home. So our Guruji, those who are, some of you might have seen his wonderful slides about one old man with 4 wives. You know that story? So for the sake of those who have not heard, once again I will relate. It actually came as an email, somebody sent very nicely. So there was an old rich man and he had 4 wives. Now he is sick on deathbed. He has to write his will, but he wants to just see them. So he calls them one by one. So he calls the youngest one and tells, whole life I put all my resources, energy, love, affection on you, gave you company. Now I am dying. How far you can help me? Would you like to come with me? Very funny question. Then she said, what you are talking? This is a very stupid question. No doubt you have loved me, but in fact I am waiting. As soon as you die, I will go somewhere. Then he calls 3rd wife. She says, I will come with you up to certain distance. 2nd wife, she says, I will come with you up to funeral pyre, but beyond that I can't come, it's not possible. By that time there is a very faint voice of 1st wife, neglected, uncared, malnutritioned. She says, Janam Janam ka saath hai. It's our eternal, my commitment. Life after life I am with you. Wherever you go, I will come with you. So we all have 4 wives. This is a symbolic story. 4th wife is our property, cars, bungalows, whatever we acquire in our life, spending our time, energy, resources. But after death, it goes to somebody else. 3rd wife is our friends, relatives. Many people don't have time for other things, but for friends, all the time spending money. But after death, nobody gives us any company. 2nd wife is our own body. It will come up to graveyard, up to funeral pyre. So 1st wife is, which we don't even try to understand, is our own pure consciousness, beyond mind, that state which is beyond thoughts, which is always with us, birth after birth. That is our Swarupa, true nature, what really we are. Sometimes we get a glimpse, this Swarupa, one question comes, why I should have Swarupa? For yoga I should go to Swarupa. Through yoga I get Swarupa. Why I should bother about my Swarupa? Why I should go to my true nature? Because that's what everyone wants. What is this Swarupa? This Swarupa is the essence of all the happiness. What are the ingredients, components of this Swarupa? Bliss, creativity, knowledge. Everyone wants to be happy. I don't want to be miserable. Sukha prapti, dukha nivritti. Either positively I want to be happy or I want to avoid misery. So in moments of bliss, actually I withdraw myself without my knowledge for a fraction of a second and I touch that pure consciousness. Christ says the kingdom of heaven is within. So we keep looking outside. But what I get happiness through outside agencies, they are just agents. I am pushed within my own self in moments of happiness, whether the source is gross, some dish, some hug, or source is something very subtle, a beautiful sunrise. I come from desert, Rajasthan, where hardly there is any river. So first time when we went to Kanyakumari, the southernmost tip of our country, vast ocean, 3 seas meet,
So we are asking our guide, how vast, how big is the ocean? And he told, you guys, you have not seen in the river. How to explain to you how big is the ocean? But he was full of jokes and funs. But he told, anyway, we are about to reach. It was sunrise. The program was to see sunrise. So we are approaching. You will see it. By that time, we reached the seashore. Vast blue ocean, dark, and beautiful red orange globe of sun just coming out of the waters. The scene was so beautiful. Even the words, how beautiful, didn't come from the mouth. You are pushed into silence. That's why we say the scene was breathtaking. There's a deep connection between breathing and thoughts. When thoughts are disturbed, emotions, breathing is fast and haphazard. Chale vate chittam chalet, nischale vate nischalam bhavet. When mind moves, breathing moves. When mind stops, breathing stops. So mind and breathing are connected. That's why through pranayama, you can handle your mind. When you are in shavasana meditation, mind is slow, breathing is slow, deep and rhythmic. But when you go to deep silence, not necessarily through yoga, our friend is telling whether yoga is the only path. Yoga, if you take only asana, then it is not the only path. But looking at sunrise and getting into silence is sunrise yoga. We can't limit yoga only to asanas. So when you see a beautiful scene, you are pushed into silence, you say, scene is breathtaking. Why? Without our knowledge, we use this term. When you are in deep silence, breathing also stops. So silence and bliss are synonymous. In each moment of bliss, the process is unconscious and fast. So you think outside sunrise is giving me happiness, tea, coffee is giving me happiness, but they are all only agents. What happens? Waves, vrittis get stopped in the moments of bliss. You have dipped within your own self for a fraction of a second. So you get a glimpse of your Sarupa in each moment of bliss. If happiness is an outside object, you repeat that sunrise every day. What happens? People who live there forever, they don't see any charm. Anything which gives you happiness, you repeat it, what happens? Law of diminishing return works. So the role of outside is only to push you within yourself. By stopping the vrittis, you get a dip in your Sarupa. So if a yogi also takes outside dishes, yogi also will have a cup of tea, a sweet dish. But when he gets into that silence, he'll keep the dish aside and hold on to that silence, that Sarupa. So that can be tea yoga for him, like Japanese tea ceremony. So anything which makes you hold on to this state, Sarupa, is yoga. The purpose of yoga is to go to that Sarupa. Tada drashtuhu Sarupe avasthanam. Sorry, you have to add AW, avasthanam. AW, avasthanam. But here you get a glimpse, it is touch and go. But through yoga, once you are in that state, you are attuned to that state all the time. You are established, avasthanam. All the time you are in that state of pure consciousness. So this is what we will see. So what I was trying to say, these first three sutra complete all the yoga. Afterwards it is only discussion, further details. Why I cannot be, for example, in that silence? There are various vrittis. Recognition is half the solution. So we have to understand what are the various vrittis, so that I can handle them nicely. So one by one we will go. First is Atha Yoga Anushasanam. Atha means now, Yoga Anushasanam. Anushasanam word has two meanings, discipline and exposition. Patanjali is not claiming to be the author of yoga.
As I told you in the earlier session, knowledge of yoga was already there. Patanjali only brought it out, exposed it. So yoga is exposition. What was hidden, scattered, he brought it out. Another meaning of Anushasanam is discipline. Discipline is not external discipline, coming in time, sitting in proper order. Here it is inner discipline. Being centered is to be disciplined. We are scattered, fragmented. The word disciple and discipline has same root. Who is a disciple? Who is ready to undergo the discipline. Who is open. Relationship between master and disciple is different from relationship between student and teacher. Between teacher and student, it's exchange of information. A teacher is not much worried about student's private life. As long as the student pays fees, follows rules, comes in time, gives assignment, he is good student. Afterwards, he smokes, drinks in modern times. Earlier, teacher and masters, they used to play the same role. But modern times. A student is not worried about teacher's personal life as long as teaches me properly in secular knowledge. My friend went to Germany. He had a friend in university, so he wanted to visit his friend in university. He is a lecturer, so this lecturer friend was giving a talk. He had very short time. So he told, please carry on with your talk, I will see the university and go. No, I have to show you my university myself. What about your lecture? There is a CD player, I will put that, my lecture, everything is recorded. He puts the CD player and goes, but he wants to check whether system is functioning properly or not. In between he comes, not a single student was there in the class. On each table, because he has kept a CD player, on each table there is a Walkman to record his lecture. Exchange of information. Now you can download all the information from websites. So this is a relation. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी मनोज भैया ने बताया, आज यह पता नहीं 43वां है कि 44वां है, जो भी, तो इस व्याख्यानमाला का यह अगला पुष्प प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने यम और नियम, इनकी थोड़ी स्थूल मोटी मोटी जानकारी देखने का प्रयास किया। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसमें से हमने शौच और संतोष को विस्तार से देखा, और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान पूर्व में ही देख चुके थे, इसलिए उन पर कल अधिक चर्चा नहीं हो पाई। आज हम अगले सूत्र पर आगे बढ़ते हैं। अब है 34वां सूत्र, द्वितीय अर्थात साधन पाद का। वितर्का हिंसादयः
कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? पतंजलि महामुनि कह रहे हिंसादि कर्म जब करते हैं या जब घटित होते हैं तो वासनाएं चित्त में स्फुरित होती है और उसके अनुसार कार्य जब होता है, अर्थात वासनाओं का उत्पन्न होने से हिंसादि कार्य आदि चित्त के तदनुसार उसके अनुसार उत्पन्न होते वैसा आचरण घटित होता है। इसे वितर्क ऐसा कहा गया है। वितर्का हिंसादय है। हिंसादि का मतलब है हिंसा, असत्य या अब्रह्मचर्य या परिग्रह या स्तेय, यह सारी भावनाएं, यह सारे वितर्क है। इन वितर्कों के कृत, कारित और अनुमोदित यह कल हम देख चुके हैं। कृत प्रत्यक्ष किए हुए, कारित दूसरों से करवाए गए और अनुमोदित जो हमने प्रत्यक्ष नहीं किए, दूसरों से भी नहीं करवाए, लेकिन और किसी ने किए और उसको हमने अनुमोदन कर दिया अपनी कृति से, अपनी वाणी से, अपने मौन से, अपने शब्दों से, जैसे भी वह अनुमोदित। ऐसे तीन भेद उनके होते हैं। तो इन वितर्कों को प्रमुख रूप से लोभ, क्रोध और मोह यह पहले उत्पन्न होकर यह उनके कारण बनते हैं और इन्हीं वितर्कों के कारण अर्थात लोभ, क्रोध और मोह पूर्वक यह फिर वितर्क उत्पन्न होते हैं। इसके लिए यह कारण होने ही चाहिए। कौन से? लोभ, क्रोध और मोह, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के कारण ही हिंसा, इन तीन चीजों के कारण ही असत्य, इन्हीं तीन चीजों के कारण, तो मूल में यही होती है, इनके कारण ही स्तेय और इन्हीं तीन चीजों के कारण अब्रह्मचर्य और इन्हीं तीन चीजों के कारण परिग्रह। तो इनके मूल में क्या होता है? तो लोभ, मोह और क्रोध, ये तीन चीजें होती है जो इनको उत्पन्न करती है, ऐसा पतंजलि महामुनि बताते हैं। तो वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, ऐसा कहा गया है। इनके कारण ही, मतलब लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक ये उत्पन्न होते हैं वितर्क। कौन से? तो ये हिंसा या असत्य या अब्रह्मचर्य या फिर अथवा स्तेय अथवा परिग्रह, यह उसके कारण उत्पन्न। और इनके कारण रूप जो मनोविकार है या ये जो कार्य रूप जो वितर्क का समन्वय है, वह जब प्रबल हो जाता है तो वह उसके अनुपात में, वह पहले अपन देख चुके हैं, तो कैसा होता है समन्वय? मृदु भी होता है, मध्य भी होता है और अधिमात्रा अर्थात तीव्र भी होता है। तो सारे संवेग, सारी भावनाएं, यह मृदु, मध्य और अधिमात्रा अर्थात तीव्र, इसी प्रकार रहती है। ये उनके भेद है, यह पूर्व में देख चुके हैं। ऐसे यह जो वितर्क है ये 27 प्रकार के हो जाते हैं। पहले तो यह लोभ, क्रोध और मोह, ये तीन हो गए, है ना। इनके अनुसार मृदु, मध्य और अधिमात्र, इन तीन के तीन तीन तीन, तो 9 त्रिक 27, ऐसे कुल मिलाकर 27 हो जाते हैं इनके भेद। मतलब छोटे से छोटे करते जाओ तो ऐसे 27 प्रकार के ये वितर्क है। यह सारे वितर्क अनेक प्रकार के दुख देने वाले, अज्ञान बढ़ाने वाले और जन्म मरण रूप संसार के अनंत भोग, अनंत फल भोगने के लिए बाध्य
करने वाले, इस प्रकार की भावनाएं चित्त में उत्पन्न करने का काम यह वितर्क करते, इनका निर्मूलन करना यह प्रतिपक्ष भावना है। देखो आप क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? पतंजलि महामुनि कह रहे हैं ये हिंसादि जो वासनाएं चित्त में स्फुरित होती है, इनके पीछे मूलतः जो 3 बातें हैं वह है लोभ, क्रोध और मोह। फिर लोभ में 3, कौन से? मृदु, मध्य और तीव्र। फिर क्रोध में भी 3, मृदु, मध्य और तीव्र। और फिर मोह में भी 3। तो ऐसे प्रत्येक के 3-3, तो ऐसे होकर कुल मिलाकर यह 27 यह वितर्क होते हैं, और ये सारे वितर्क दुख देने वाले हैं। इसलिए इन वितर्कों का निर्मूलन यदि करना है तो उसके लिए प्रतिपक्ष भावना, तो जैसे हम पूर्व में देख चुके हैं, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। ऐसी भावना करने से, प्रतिपक्ष भावना करने से चित्त प्रसादनम इस अवस्था में जाता है, अर्थात शांति आनंद की अवस्था में चित्त चला जाता है। तो पतंजलि महामुनि इनको जो बता रहे, इसका थोड़ा विस्तार हम देखते हैं। वितर्क के 3 भेद और उनके फिर फल हम देखते हैं प्रत्येक के। पिछले सूत्र में हिंसा आदि इन वितर्कों का सामान्य निर्देश तो किया हुआ है कि हिंसा में कैसे कैसे वितर्क उत्पन्न होते हैं, देखा हमने। इसी में वितर्क का कृत प्रत्यक्ष किया हुआ, फिर कारित दूसरों से कराया हुआ, और अनुमोदित जो हमने खुद नहीं किया, दूसरों से भी नहीं कराया, लेकिन अपने बोलने से, अपने व्यवहार से जिसको हमने मान्यता दी। ऐसे 3 भेद हुए, है ना, 3 बातें हुई है, कृत, कारिक और अनुमोदित, जो कल हम काफी विस्तार से देख चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई आदमी, मान लीजिए वह झूठ बोल रहा है, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो अथवा वह हिंसा करता है, या अनावश्यक भोग वह भोग रहा है, या मान लो कि परस्त्री की ओर वह देखता 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 मन ही मन वह व्यभिचार के स्थिति तक वह पहुंच जाता है, और वह अपने मन में ही भोग साधनों का पसारा फैला लेता है ना। तो और मान लीजिए कि वह शौच आदि जो नियम है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि, इनका भी पालन नहीं करता है। तो क्या हो गया? ये सारे जो वितर्क है ये कृत इस प्रकार में है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष देखा किसी स्त्री को, अथवा वह झूठ बोल दिया, अथवा प्रत्यक्ष हिंसा करी, ये सारा कृत इसके अंतर्गत आ गया, है ना, प्रत्यक्ष किया हुआ। लेकिन अनेक बार ऐसा भी होता है कि वह प्रत्यक्ष नहीं करता है, वैसा आचरण नहीं कर रहा है, और वह अलग रहता है, और वह स्वार्थी हेतु से, मतलब उसके मन में स्वार्थ रहता है, और यह सारी बातें वो दूसरों से करवा लेता है, खुद नहीं करता है लेकिन दूसरों से करवा लेता है, और वह यह सोचता है कि यह मेरे हाथ से तो घटित हुआ ही नहीं, मैंने तो खुद किया ही नहीं, तो इन पातकों से, इन पापों से मैं तो बच गया हूं, मैंने तो किया ही नहीं। ऐसा वह दर्शाता है, ऐसा वह दर्शाता है, मैं तो इससे मुक्त हूं, मैंने तो किया नहीं। लेकिन साधक की दृष्टि से ऐसा व्यवहार भी, ऐसा वर्तन भी वह खुद किया हुआ वर्तन के समान ही है, उतना ही कार्य है, उतना ही पातकी है। इसलिए योग में जो प्रवृत्त जो होता है साधक, उसने यम और नियम
इन दोनों अंगों का अनुष्ठान अवश्य रूप से करना आवश्यक है। इन दोनों में भी नियम का पालन योगी एक बार नहीं भी किया तो चल जाएगा, लेकिन यम का पालन तो उसको करना ही है, क्योंकि यम जो है यह दूसरों के साथ कृत, कारित और अनुमोदित, इस संबंध में वह यम का पालन करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। और यदि वह नहीं होता है किसी प्रकार से, तो वह उस पतिता अवस्था की तरफ जाता है। इसका हेतु बिल्कुल खुला है, और ऐसा है कि यम का संबंध तो समष्टि के साथ है, दूसरों के साथ है, और नियम का संबंध व्यक्तिगत है, अपने से। इसलिए नियम का पालन यह थोड़ा बहुत तो अनिष्ट फल तो देता ही है, वो उसको भोगने पड़ते हैं, लेकिन यम के पालन में यदि ढिलाई हुई तो उसका जीवन दुख की तरफ जाता ही जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करे, वह ज़्यादा अच्छा है। इसलिए योग में प्रवृत्त जो साधक हो जाते हैं, उन्होंने यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके इर्द गिर्द जो भूत मात्र है, भूत मात्रा मतलब केवल आदमी नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कृमि, कीट आदि सब कुछ, इनको अभय मिलना चाहिए। उसके अपने व्यवहार से उनको डर नहीं लगना चाहिए। उसके अंदर इतना प्रेम भाव, अहिंसादी वृत्तियां इतनी प्रगाढ़ता से उसके अंदर आनी चाहिए, भर जानी चाहिए, या मैत्री भाव भूतों के बारे में इतना भर जाना चाहिए, और साधक के हाथ से हिंसादी दोष वह नहीं होने चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है, समष्टि मतलब जो बाह्य वातावरण है या बाह्य परिस्थिति, बाह्य जीव जंतु है, ये भी साधना में सहायक हो जाते हैं। यह कह रहे हैं पतंजलि महामुनि, वह कह रहे हैं ये वितर्का, हिंसा, दया, कृतकारिता, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, मृदु मध्यादि मात्रा, दुख, ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावना। यह प्रतिपक्ष भावना है कि वह इतना अहिंसा आदि का भाव अपने में प्रगाढ़ कर ले कि उसके इर्द गिर्द के सारे प्राणी, मनुष्य जाति, कीट आदि आदि, वह उसको किसी प्रकार से तकलीफ ना दे, अनुकूल हो जाए, ताकि वह अपनी साधना में आगे बढ़ सके। देखिए कितनी बढ़िया बात है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है। उससे क्या है, वह भी उस विचार से भर जाता है, और उनके विचारों का, उस साधक के विचारों का जो सूक्ष्म प्रभाव है वह भी इर्द गिर्द पड़ने लगता है, और धीरे धीरे समष्टि से मतलब बाह्य जो भूत मात्र है उनसे भी उसको अनुकूलता प्राप्त होती है। केवल अनुकूलता नहीं, विरोध भी नहीं होता है। पतंजलि कह रहे हैं फिर उनसे विरोध भी नहीं होता है। तो आप साधना मार्ग में हो तो प्रतिकूलता है, एक अच्छी बात है, लेकिन उनके मन में साधक के लिए भी अहित, अकल्याण, ये बहुत साधना करता है इसको हटाओ, अरे ये बहुत साधना करता है इसको परेशान करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं जब छोटा था, हमारे घर में जनार्दन स्वामी जी आते थे। जनार्दन स्वामी जी नागपुर में होते थे, और उन्होंने वहाँ योगाभ्यासी मंडल की स्थापना करी थी नागपुर में, और बहुत अच्छे साधक व्यक्ति थे, बहुत ऊंचे दर्जे के साधक थे। उनका शरीर ऐसा था, इतना मोह मुलायम, हम लोग छूते थे। मैं तो छोटा था, छोटा मतलब 10वीं और 11वीं 10वीं प्री यूनिवर्सिटी में रहा, हम उनके शरीर को जब छूते थे हाथ वगैरह, ऐसा लगता था जैसे कपास का, रुई का उनका शरीर बना हुआ है। उनके शरीर में लाल और हरी शिराएं, रक्त वाहिनियां दिखाई पड़ती थी, और हंसता हुआ चेहरा, एकदम निरागस, एकदम निर्मल, बहुत प्यारी प्यारी आंखें। बहुत ऊंचे नहीं थे वो, मुझे लगता है 5 फुट 2 इंच 5 फुट 1 इंच इतनी हाइट के होंगे। गोरे चिट्टे, गोल सा चेहरा, सुंदर शरीर उनका होता था। कन्याकुमारी की शुरुआत की बैचेस को, मतलब हम लोग चौथी बैच में थे,
हमारे पूर्व की 3 बैचेस को योगाभ्यास कराने के लिए जनार्दन स्वामी जी ही कन्याकुमारी में जाते थे। हमारी बैच से फिर उनका आना बंद हुआ। खैर जो भी हो, तो घर में जब आते थे तो हमारे पिताजी या माँ या करके कोई लोग पूछ लेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, कुछ भोजन करेंगे, खाएंगे। कहते थे मुझे दही दे दो थोड़ा, और दही केवल आधी कटोरी, 1 कटोरी भर के भी नहीं, केवल आधी कटोरी दही वो लेते थे, दही खाते थे। एक बार वह कहानी बता रहे थे। वे कहते थे जब मैं साधना कर रहा था किसी गांव के बाहर, यह बात जानबूझकर उठा रहा हूँ यहाँ पर, कि जब किसी पेड़ के नीचे मैं साधना कर रहा था तो गांव के कुछ युवक जो व्यायाम करते थे, हट्टे कट्टे थे और युवा अवस्था में थे, तरने बांड, वो आकर खूब मजाक, हंसी मजाक उड़ाते थे। और एक दिन उन्होंने कहा, ये तुम्हारी साधना से क्या होता है, ये योगाभ्यास और ये ध्यान और ये पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठना, इससे क्या होता है? बोले एक बार मैंने कहा उनको कि तुम्हें ऐसा लगता है कि साधना से कुछ नहीं होता? बोले क्या होगा इससे, ये मऊ मुलायम, ये तुम्हारा शरीर डोल डोल, इससे कुछ होता है क्या? हमारा जैसा कसावट शरीर, कसा हुआ होना चाहिए। तो मैंने कहा उनको, यदि इतना ऐसा है ना तो तुम लोग मुझे उठा कर दिखाओ। और 3-4 लड़कों ने उठाने की कोशिश करी, उनको उठा नहीं पाए। जनार्दन स्वामी जी ने स्वतः यह बात बताई है और मुझे वह बात अभी भी याद है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा विरोध हो सकता है कि हमें विरोध की दृष्टि से, मतलब आंतरिक शक्ति उनकी कितनी विकसित हुई यह तो एक बात, लेकिन बाह्यता विरोध भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बातें धीरे धीरे उस वातावरण में भी फैलनी चाहिए और लोग सहयोगी बनने चाहिए। उससे क्या होगा, उससे अन्य लोगों से फिर वो साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता है और साधना भंग होने का वहां पर मौका नहीं बनता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब प्रत्यक्ष अपने हाथ से कोई दोष नहीं घटित हुआ, तब भी दूसरों के हाथ से कारित होने से, मतलब कारित कर्म होने से भी योग से पतन हो सकता है साधक का। इसलिए प्रतिकूल इस प्रकार की परिस्थिति न बनने दे, यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे उदाहरण के लिए किसी ने हाथ से किसी को चपत मारी या किसी की पिटाई करी तो यह तो कृत हुआ। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने हाथ में एक डंडा लिया, लाठी ली और उससे पिटाई करी, और वो ये कह रहा है मैंने हाथ तो लगाया नहीं, मैंने हाथ से तो मारा नहीं, मैंने तो उस डंडे से मारा। तो क्या डंडे से मारने से वह छूट जाता है? वह भी कृत कार्य में ही सम्मिलित होता है। इसलिए हिंसादी दोषों से बचने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उन परिणामों को भी भोगना पड़ता है। तो कृत, कारित और यह जो अनुमोदित है, इनमें से बचना बहुत जरूरी है। तो हिंसा, स्थेय, असत्य, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनसे बचो, यह सब वहां पर लागू करो, ऐसा पतंजलि महामुनि इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। लेकिन वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि दुख ज्ञानानंत फला, दुख अज्ञानानंत फला, तो इससे दुख की ही निर्मिति होती है। इसलिए सारे भूतों से, मतलब प्राणियों से आदि से मैत्री भावना सतत अपने मन में रखनी चाहिए और अपने मन के यह जो अहिंसादी, मतलब हिंसादी जो भाव है वह नाश करके अहिंसादी का पुरस्कार करना चाहिए। यह अहिंसादी का जो भाव है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपन मोटा मोटा कि प्रत्यक्ष किसी की हिंसा नहीं करी या नहीं करवाई या अनुमोदित नहीं की, कितनी बार बात हम मानते हैं, लेकिन हमारे हाथ से बहुत हिंसा होती है। जब तक होती है, ये कहा गया है कि ये जो मिल होते हैं कपड़ा बुनने वाले, यह मिल अधिकतर तो मुंबई में है, कलकत्ता में भी है,
यहाँ कपड़ा बुना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत है हवा में, और धागा सतत चलने के लिए, मतलब सतत बनने के लिए ये ह्यूमिडिटी जरूरी है। तो ऐसे ह्यूमिड क्लाइमेट में, मतलब जिसमें बहुत सीलन सी है, सील्ड सी है, ऐसे वातावरण में मिलों के काम होते हैं और उसमें मजदूर काम करते हैं। अनेक मजदूरों की नाइट ड्यूटी होती है और इतना ह्यूमिड रहता है, फिर वो जो रेशे है वो उठते हैं, उनके श्वास से, नाक से फेफड़ों में जाते हैं, अनेक लोगों को इन्फेक्शन होता है। तो वैसा कपड़ा पहनना यह भी हिंसा है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कपड़ा पहनना कि जो उनके जान पर बनी और वो हमने पहना, वह भी हिंसा है। अनेक माताएं बहनें घर में काम करती है, बहुत सारे भगोना इधर का उधर रखना, चूल्हा जलाना, या फिर चटनी पीसना, आटा गूंथना, इन सब में न जाने कितने सारे कीट आदि उनकी हत्या होती है। तो वो भी एक बड़ा दिक्कत का काम है। इतना ही नहीं, पुराने दिनों में, मतलब अभी थोड़े समय पहले तक, ये जो चाय के बागान होते हैं ना आसाम में, इन चाय के बागान में मजदूरों को बहुत कष्ट करने पड़ते थे और अधिकतर मजदूर जो है वो गरीब परिवारों के होते थे। कुछ आसाम के होते थे और अधिकतर बिहार के होते थे, और वे बंधुआ मजदूरी होते थे। उनका रहना, खाना पीना, बच्चे होना, उन बच्चों की शादियां होना और बूढ़ों का घर में रहना, मरना, टीबी होना, ये सब वहीं के वहीं यही चलता रहता। वो जो मर जाते थे बहुत कष्ट होते थे, उन लोगों को बहुत कष्ट दिए जाते थे, छोड़ते नहीं थे। जो चाय बागान वाले होते थे छोड़ते नहीं थे। तो ये जब मरते थे उन्हीं बागानों में दफनाए जाते थे और उसके ऊपर चाय के पौधे लगा दिए जाते थे। और वह जो चाय के पौधे लगते थे उन्हीं की पत्तियां तोड़कर उन पत्तियों से चाय हम सब लोग पीते हैं। आप इसे अंदाज लगाइए कि हम जो चाय पीते हैं तो वो हिंसा भाव वाली है कि अहिंसा भाव वाली है। तो ये हालत है, मतलब हम में से प्रत्येक का यह होता ही है। तो ऐसे में क्या करो, यह एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। तो क्या कहते हैं पतंजलि महामुनि? पतंजलि महामुनि कहते हैं इसको आप धर्मशास्त्र की आज्ञा यहाँ पर लागू करो। धर्मशास्त्र क्या कहता है कि आप पंच यज्ञ अपने जीवन में लागू करके फिर भोजन ग्रहण करो, फिर कोई वस्तु ग्रहण करो। पंच यज्ञ में क्या? पितरों के लिए, ऋषियों के लिए, या माता पिता के लिए, गुरुओं के लिए, भूत यज्ञ के लिए। भूतों के लिए मतलब कोई गाय है, कुत्ता है, अपने घर में आया हुआ अतिथि है, किसी मनुष्य को भोजन कराया आदि, या पेड़ पौधों के लिए कुछ विशेष योजना करी, पेड़ पौधे लगाए आदि आदि। तो यह बहुत जरूरी है। ऐसा नैवेद्य दिखाकर, प्रार्थना कर, मन में अच्छा भाव रखकर, उनका जो भोग है वह अलग निकाल कर गाय को वगैरह खिलाना, या कोई अतिथि आया उसको खिलाना, यह सब करके ही फिर यदि भोजन करता है वह व्यक्ति या कोई चीज ग्रहण करता है तो फिर ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करना चाहिए, तब वह यह प्रतिपक्ष भावना हुई। मतलब यह जो विचार मन में आते हैं और फिर कृत, कारित और अनुमोदित हो जाते हैं, या फिर यह जो संवेदनाएं होती है मृदु, मध्य और तीव्र, इन संवेदनाओं का जो दबाव है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और इस प्रकार यह अनुमोदित जो प्रकार है इनको साथ लेकर ही फिर आगे बढ़ना चाहिए। यह स्पष्ट होने के लिए एक विषय और लेते हैं, परिग्रह। तो सामान्यतः जीवन के लिए आवश्यक जो वस्तु है वह वस्तु मनुष्य इकट्ठा करता रहता है, लेकिन इनके मूल में फिर वही होता है, लोभ भी रहता है, क्रोध भी रहता है, मोह भी रहता है, ये रहता ही रहता है। उसके बिगैर कोई वस्तु वह अपने पास लेने के करेगा ही नहीं, होती ही नहीं है। मान लो कि किसी के मन में ये इच्छा हुई कि जैसे पुराने दिनों की बात थी, जैसे रेडियो, कि मुझे अच्छे गाने सुनने का मन है तो रेडियो लेना चाहिए। तो रेडियो जब लिया या लेते हैं तो फिर ये तो प्रत्यक्ष जो लिया
तो ये तो कृत है ना, ये जो कार्य है ये कृत है, खुद ही लिया। लेकिन मान लो ये नहीं लिया, अपने खुद के पैसे से नहीं लिया, लेकिन परिवार में ही किसी ने लाया, तो यह कारित हो जाएगा। और मान लो हमने तो नहीं बताया, लेकिन वो रेडियो घर में आने के बाद हम उससे खूब मजे से मौज से गाने सुनने लगे, तो यह अनुमोदित हुआ। प्रत्यक्ष नहीं लिया, कारित भी नहीं है, दूसरों को लाने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन आ गया और हम खूब मजे से सुनने लगे, तो यह अनुमोदित परिग्रह हुआ। इस प्रकार ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो वितर्क मार्ग है, इनके 3 हेतु रहते ही है, लोभ, क्रोध और मोह। यह 3 निरंतर रहते हैं और इस कारण बहुत सावधानता इसमें रखने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह सोचने की जरूरत है कि हम इनके कब अधीन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ सावधानी रखकर ही हमने यह सारे काम करने चाहिए, ऐसा इस सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 35वें सूत्र में पतंजलि महामुनि देते हैं, इस द्वितीय पाद में, साधन पाद में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागा। मुझे लगता है हम सब लोग इस सूत्र का इंतजार कर रहे होंगे कि अरे अभी तक हमने यही सुना कि यह जो अष्टांग योग है, इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो वितर्क वादना और ये जो लोभ, क्रोध और मोह और ये इनके 9 भाग और 9 त्रिक 27, ये तो सब हमने कभी सुना ही नहीं था। मैंने खुद भी नहीं पढ़ा था, मैंने खुद भी नहीं सुना था। ये मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्यकारक, मतलब चित्त कितना बारीक स्तर पर काम कर सकता है और वहां से इस चित्त को सुधारने की आवश्यकता है, यह पतंजलि महामुनि बता रहे। पतंजलि महामुनि आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग। अनेकों बार सुना हमने, अनेक बार सुना और सुनते अच्छा लगता है, वाह वाह वाह। अहिंसा प्रतिष्ठा, जिसमें अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके आसपास तत्सन्निधो वैरत्यागा, जितने आसपास के पशु पक्षी प्राणी या मनुष्य होते हैं, उनका वैर भाव पूर्णतः वह त्याग देते हैं, यह समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन होता कैसे है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ से आगे 11 सूत्रों में यह यम और नियम, इनका व्रत जब पूर्णत्व को पहुंच जाते हैं, तब योगी में कौन कौन से फल दृगोचर होते हैं, दिखते हैं, दिखाई पड़ते हैं, यह बताया। जब योगी मतलब साधक, मुमुक्षु, जब जिज्ञासु, जब इसमें से किसी व्रत का अपने जीवन में पालन करता है, लागू करता है, तो जैसे तीसरे पाद में आता है ना, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है विविध प्रकार की, है ना, तभी तो उसको विभूति पाद कहा हुआ है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां उत्पन्न होती है, बस यहीं से शुरुआत हो रही है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग, यह तो सिद्धि है। जब कोई साधक अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसके सानिध्य में सभी लोगों का, सभी पशु पक्षी प्राणियों का वैर भाव छूट जाता है। और इससे बड़ी क्या उपलब्धि होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। आइए उसके विचारों का, उसके मनस्थिति का इतना सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव पड़ता है कि जिससे उसके मन की तो हिंसा सब समाप्त हो ही गई। हमने पूर्व के सूत्र में देख ही लिया था, वितर्क भावना प्रतिपक्ष भावना, है ना, तो प्रतिपक्ष भावना से वह तो समाप्त हो गया। अब एक एक चीज यदि ऐसा होता है तो यह हो जाएगा, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। कैसे होता है यह, दूसरों के मन पर कैसे प्रभाव पड़ता है? आप सब लोगों को पता होगा कि जो सितार होती है ना, सितार, यह सितार जब अच्छी ट्यून्ड रहती है तो उसमें कुछ मोटे मोटे तार, बड़े तार ऊपर होते हैं और कुछ बारीक तार, तो श्रुति नीचे की, श्रुति ऊपर की,
ऐसे वो तार होते हैं। तो जो मोटे मोटे तार है वह यदि छेड़ दिया जाए तो जो नीचे के तार है वह स्वयं ही झंकृत होते हैं। इतना ही नहीं, मान लो किसी हॉल में वह एक कोने में सितार रखी हुई है और ठीक इस सितार से ठीक मैच करने वाली श्रुति में ही दूसरी सितार उस हॉल के दूसरे कोने में रखी हुई है और केवल एक सितार को छेड़ दिया जाए तो दूसरी सितार से भी उसी प्रकार की ध्वनि निकलती है, उसी श्रुति में ध्वनि स्रवित होती है। तो यह मैच होने से ऐसा होता है। वैसे ही यह साधक जब यह अहिंसा की वृत्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसका भी इतना सूक्ष्म प्रभाव उस वातावरण में पड़ता है। तभी तो श्रुतियों में, उपनिषदों में और शास्त्रों में यह वर्णन है कि गाय हिंस्र श्वापदों को चाट रही है, शेर और हिरण का बच्चा साथ साथ बैठे हुए हैं, सांप और मेढक पास पास बैठे हुए। आद्य शंकराचार्य जी भारत में परिव्राजक अवस्था में घूमते हुए देखते हैं, एक स्थान पर एक सांप अपना फन फैलाए उठे भरी दोपहरी में फैलाए हुए बैठा है और उसकी छाया में नीचे मेढक बैठा है। उसी स्थान पर श्रृंगेरी मठ की आद्य शंकराचार्य जी ने स्थापना करी। कहने का तात्पर्य है ऐसा हो सकता है, प्रतिपक्ष भावना हो सकती है। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। तो यम नियम का अनुष्ठान करने वाले साधक ने यदि इसको अपने मन में अच्छे से बिठा लिया तो यह हो सकता है और ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए आप देखो ना, कोई व्यक्ति बहुत आनंदी है, बहुत प्रसन्न मनस्थिति का है, आप उसके पास जब जाते हो प्रसन्नता लगती है कि नहीं? लगती है। अच्छा, कोई व्यक्ति बिल्कुल दुर्मुख है, बिल्कुल उदासीन भाव वाला है, किसी प्रकार कोई हंसी मजाक या कोई विशेष बात उससे प्राप्त होने की संभावना नहीं और बिल्कुल निराशा से, घोर निराशा में पड़ा है, आप उसके पास जाकर देखिए, आप भी उस निराशा से घिर जाएंगे। आप जब किसी मंदिर में जाते हो आपको बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, जब यहाँ पर महाराष्ट्र में पुणे के पास आलंदी नाम का जो स्थान है, संत ज्ञानेश्वर जी ने जहाँ जीवंत समाधि ली, उस स्थान पर जब मैं गया तो वहां पर एकदम शांति महसूस हुई। ऐसा लगा कि चुप आंखें बंद रखकर बैठ जाओ। क्यों लगा? तो वहां की जो वाइब्रेशंस थे वह वाइब्रेशंस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से जब साधक कोई एक चीज में जब वह पूरे तरीके से प्रतिष्ठित हो जाता है तो दूसरों के मन में प्रतिस्पंद वह वैसा ही निर्मित करता है और उनके अंदर की जो, मान लीजिए कोई बहुत क्रोधी है, मान लीजिए कोई बहुत संतापी है, मान लीजिए बहुत कोई मोह से या लोभ से ग्रसित व्यक्ति है, वह सारी बातें उसकी धीरे 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 छूट जाएगी। लेकिन यह बहुत प्रयास पूर्वक करने की आवश्यकता है, बहुत प्रयास पूर्वक करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में तो सतत युद्ध ही युद्ध है, सतत युद्ध है, सतत युद्ध है हमारे जीवन में, सतत लड़ाई है। रात्रंदिनामा युद्धाचा प्रसंग, ऐसा वाक्य तुकाराम महाराज ने कहा है। दिन रात हम लोगों के लिए, मतलब साधकों के लिए युद्ध ही युद्ध है, सतत रात्रंदिन अम्मा, हमें युद्धाचा प्रसंग। इसलिए सत्प्रवृत्ति से
जब कोई आगे बढ़ना चाहता है तो असत प्रवृत्ति के साथ युद्ध करने की, लड़ाई करने की आवश्यकता है। एक बार यदि इसमें जय प्राप्त हुआ तो योगाभ्यास का आगे का जो मार्ग है वह सुकर हो जाता है। अर्थानाम अर्जने क्लेशः, जितना जितना यह सारा कुछ अनर्थ की बातें प्राप्त करते हैं उतना क्लेश जीवन में अधिक होता जाता है। तो ऐसा हर चीज में इसको फिर लागू करना है। यह बात प्रमुख रूप से अहिंसा के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। फिर आगे पतंजलि महामुनि 36वें सूत्र में कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जब योगी के अंदर सत्य स्थिर हो जाता है, वह स्थिर भाव को जब प्राप्त हो जाता है तो कोई क्रिया करने से जो फल प्राप्त होता है वह क्रिया किए बगैर ही योगी के इच्छा के कारण मात्र से वह पूर्ण हो जाती है, उसका आश्रय वह फल करने लगता है। तो केवल इच्छा मात्र से वह फल निष्पन्न होता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। तो अनेकों बार हमने ऐसी भी घटनाएं सुनी है ना, कोई बालक मर जाता है, उसकी माँ किसी साधु पुरुष के पास ले जाती है और साधु पुरुष को कहती है मेरे बालक को जीवित कर दीजिए, यही मेरा आधार था। और वह योगी पुरुष कह देते हैं कि यदि मैंने अपने जीवन में सत्य का परिपूर्ण पालन किया हो तो यह बालक जीवित होगा, और वह बालक जीवित हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में अनेक कहानियां इस प्रकार की आनंद आई है। तो इस प्रकार से अनेक लोगों के जीवन में यह दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लोग वह जो कहते हैं वैसा घटित हो जाता है। अनेक लोगों को पूर्व में ही किन्हीं बातों का आभास हो जाता है। यह सारा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम के कारण घटित होता है। इसका विस्तार तो काफी है, लेकिन जो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं उनकी इच्छा शब्द रूप से यदि व्यक्त हो गई तो वह सृष्टि की जो शक्ति है उस शक्ति के अनुरूप ही वह अभिव्यक्त होती है। उस कारण सृष्टि में वह क्रिया घटित होनी है, वही वह साधक, वह मुमुक्षु, वह साधनारत व्यक्ति, वह योगनिष्ठ उसी बात को बोलता है। उस कारण वह क्रिया फलाश्रयत्वम हो जाता है। इस प्रकार सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, इस प्रकार यह अहिंसा सत्य, ये जो दो यम के प्रकार है यह हमने देखे। तीसरा प्रकार है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। योगाभ्यासी साधक चित्त में जब अस्तेय वृत्ति को सुप्रतिष्ठित कर लेता है, जब वृत्ति सुप्रतिष्ठित हो जाती है तो पृथ्वी के सारे रत्न मतलब सारी संपत्ति, रत्न से क्या उपलक्षित है तो सारी साधन संपत्ति इस धरा पर जितनी है उसने स्वतः के लिए उसका अभिलाष नहीं किया है, स्वतः के लिए इच्छा नहीं की है, वह लोक कल्याणार्थ ही उसका प्रयोग करना चाहता है, तो वह सारी उसके सम्मुख उपस्थित हो जाती है। वो तो वैसी ही रहती है, उसके सामने ही है, चाहे वह पृथ्वी के अंदर हो चाहे पृथ्वी के बाहर है, क्योंकि उसको मोह, क्रोध, लालसा, लोभ यह नहीं है। उसके कारण जो जहाँ 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 संपत्ति है
वह वहाँ है ही, उसके कारण उसको उसके पोजीशन में, उसके इर्द गिर्द ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न, जैसे ही उसको यह लगता है कि इसका मुझे कोई उपयोग नहीं है, मेरे पास हो अथवा न हो, यह भाव होते ही उसको वह सर्वत्र दिखाई पड़ेगी। यह वृक्ष भी फिर संपत्ति है, जो मनुष्य उसके संपर्क में आएंगे वह भी संपत्ति है। उसके पास जो जो उपस्थित है, वह नदियां, वह जल स्रोत, वह तालाब, वह सारा कुछ, वह वायु, वह वनराजी, जंगल आदि, वह सारा कुछ संपत्ति संपत्ति है और उसके लिए उपलब्ध ही है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, या अमूल्य निधि उसके लिए सदैव तत्पर हो जाता है। आगे थोड़ा सा विस्तार कल हम देखेंगे। आज का यह सत्र यहीं समाप्त करते हैं प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को धन्यवाद। प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। थोड़ा सा शांत बैठ लेते हैं। एकदम क्षणों में एकदम शांत हो जाए, एकदम ढीले ढाले हो जाए, एकदम अपने आप को तनाव रहित कर ले। बस मैं हूं, इतना मात्र। बस बैठे रहिए एकदम बिना हिले डुले, एकदम मूर्तिवत होकर, शांत शांत। शांत शांत। आंखों के गोल अंदर ही अंदर थोड़े नीचे की ओर झुका लें। आंखों को नीचे की ओर झुका लीजिए अंदर ही अंदर।
ओम शांति शांति शांति।